So we'll wait for 2 more minutes for people to join in, then we'll continue. Okay, so let's begin. I hope you guys are able to see the screen. Screen दिख रही है सबको? Okay. So कल हमने क्या क्या देखा था? कल basically we saw 4 things. Let us quickly revise. Margins, left margin which talks about originality, father. Right margin which talks about future and opportunities. We saw straight left margin, 1/8 is the ideal space. We saw widening left margin. We saw a very narrow left margin. As far as right margin was concerned, what had we seen? We saw normal straight right margin and a very narrow right margin. Okay. Then we next came to baselines. We divided our page into three parts: day, noon or midnight, midday, and the last the lower part was all about the night. So baselines, when they are going upwards from left to right, it means there is more optimism, there is more hope. The person is positive, his overall attitude is very positive. When those lines droop down, they go downwards, it means depression, pessimism, and all those things. So this was all about margins and baselines. Next, we talked about F. We talked about 3 zones. F is the letter which goes in all the 3 zones. The middle bar is the patience bar. The upper part is for planning. The lower part is for execution. And the middle cutting is for patience. Next we saw R. R में not अच्छा है. And in that not we saw basically 3 types of R. One which was a normal R, one with a knot, and other one with 2 knots, which was a maniac R, which is usually written in cursive handwriting. Right? Clear, all of you? Any doubts? Okay. Next, today our day is going to be divided in a way like there are going to be alphabets, and there are also going to we learn the basics of signature analysis basically. So next alphabet हमारा जो है, that is B. B is basically for blood flow. I hope again you guys are ready with your own sample. हम लोग आज एक लाइव एनालिसिस भी करने वाले हैं सैंपल का. सो एक मिनट. ओके. ब्लड फ्लो.
अच्छे से आप लोगों के जो आपका बी है उसको अच्छे से गौर करके देखो. If you are having this small opening over here, it is this B I'm talking about. अगर ये balloon जो है, if it is not joining the stem, this is the balloon and this is the stem. In that case, there is a high possibility that there might be a cardiac history in your family. हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपके घर में है, हार्ट के प्रॉब्लम्स लोगों को है, आपको डायरेक्टली नहीं होगे तो भी आपके see most of the times you've heard that, right, that cardiac issues are they are mostly hereditary, अनुवांशिक जिसे हम कहते हैं, वो आ सकते हैं. तो अगर आपके बी में ये गैप दिख रहा है, it basically means that your you're not able to, your blood flow to the heart is not apt. So there are possibilities that आगे चल के आपकी भी लाइफ में कार्डियक हिस्ट्रीज आ सकते हैं. अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, ये जो हॉस्पिटल्स है इनको सबको छोड़ के अपना बी जोड़ देते हैं तो मेरे हार्ट प्रॉब्लम चला जाएगा. अरे भाई, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू मेडिकल साइंस, दिस इज अ साइकोलॉजिकल इश्यू विच इज बीइंग रेड. हाँ, आपका बी आप ज्वाइन करोगे तो कहीं तो आपके ब्लॉकेजेस ओपन होने की पॉसिबिलिटी है साइकोलॉजिकली, बट दैट डजंट मीन दैट यू आपको चिल मारना है एंड आपको सिर्फ बी जोड़ दिया तो आपल्याला आता डॉक्टरची गरज नाही, असं नाहीये. दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू मेडिकल सायन्स. आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, ग्राफोथेरेपी से अगर आप आपका बी जोड़ दोगे, if you connect it properly, if you close this, yes, the possibility of you being, your cardiac issues might come down. Yes, there is a heavy possibility. So this is the first type. Second, ये चलो अभी ऊपर जो मैंने कहा उसके बेसिस पे एनीवन वांट्स टू आंसर कि ये ऊपर से अगर ओपनिंग है तो इसका मतलब क्या होगा? Lesser blood flow to the brain. These people will face acute migraine problems. कोई है जिसका बी ऐसा है? हाई पॉसिबिलिटी. क्यों? क्योंकि इनका ब्लड फ्लो ऐप्ट नहीं है. अगेन, अगर ये बी को ऐसा जोड़ देंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो सर इस केस में माइग्रेन कम हो जाएगा. यस, ये स्मिता जी, you have this B, this kind of. अच्छा, okay. So is there a lot of headache issue? माइग्रेन होता है या acute headache होता है? Yes, good. So we already have someone who's facing this. So आप इस बी को क्लोज कर सकते हो. साइकोलॉजिकली आपका हेडेक काफी हद तक कम हो सकता है. ओके, जितना ये बड़ा ओपनिंग उतना ज्यादा प्रॉब्लम.
देखो ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा है या ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा है इन दोनों में? ऑफ कोर्स ये वाला, क्योंकि ये ओपनिंग ज्यादा बड़ा है। ओके, सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बी, एक जो नीचे से खुल रहा है, एक जो ऊपर से खुल रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ ग्राफोलॉजी ऑल्दो। सो आवर नेक्स्ट लेटर टुडे इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, एस। दुनिया का एक नियम है दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ हमारे पास जो एजेड एजेड है थोड़े से, जो ऑलरेडी नोन है लाइफ कैसे चलती है, उन लोग वो लोग शायद मुझसे ज्यादा सहमत होंगे। जो यंगस्टर्स है उनके लिए है ये, आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। ये दुनिया का न्याय है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मेरे आपके जैसा कोई आम आदमी हो, जो जितना देता है उतना उसको मिलता है। ये फिलोसॉफी अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एस इज रिलेटेड टू दिस। एस टॉक्स अबाउट सिंपैथी। In S, this upper part, this upper loop is the verbal sympathy, or this lower loop is the execution. क्या ये verbal sympathy ऐसा कुछ सुना तो नहीं है पहले? बताता हूँ। I'm trying to break it down in a layman's language. This lower loop. ये जो इंसान है ना, ये एक एस है, ठीक है? ये पहला टाइप है। ये जो इंसान है, ये नॉर्मल कोर्स में अगर आप फेल हो जाते हो, सपोज से सीए एग्जाम में आप किसी अटेम्प्ट में फेल हो गए हो, तो जो जिसका ये लोअर लूप छोटा है और लोअर लूप बड़ा है और ये अपर लूप छोटा है, ये आपको फोन करके पूछेगा भाई किधर है, क्या प्रॉब्लम है? बोलोगे यार फेल हो गया हूँ, नहीं हुआ हूँ क्लियर। वो पूरा दिन आके आपके साथ बैठेगा, आपके साथ रोएगा भी। इसको जेन्युइन सिंपैथी है आपके लिए। ये वाले, इसकी देने की वृत्ति बहुत अच्छी है। ये इसीलिए नहीं देता है क्योंकि उसको देने में बड़प्पन मिलता है। ऐसा इंसान, ऐसे एस वाला इंसान जिसका लोअर लूप बड़ा है, ये इसीलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि मैं जो चीज दे रहा हूं उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा सामने वाले को है। इन लोगों को लक हमेशा फेवर करेगा। ऑन द सेम लाइंस, ऑपोजिट, ये क्या है? अरे फोन करके आपको 10 चीजें बोलेगा। अरे रे 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 रे, बहुत ही बुरा हो गया यार, तू फेल हो गया, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या बोलूं ये वो। और फोन रखने के बाद वो आपके साथ आके रोएगा नहीं। वो उसकी जिंदगी में मस्त है। His priorities are not people's problems or having really sympathy or empathy with people. He'll basically be engrossed in his own life. तो इन लोगों की देने की वृत्ति बड़प्पन की है। वो क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उससे उनको बड़प्पन मिलता है। ये क्या है ये? दिस इज एन इलेक्ट्रिक एस। यहाँ पे इन लोगों का प्रॉब्लम क्या? इनकी देने की वृत्ति बुरी है क्या? देने की वृत्ति अच्छी ही है, क्योंकि लोअर लूप बड़ा है अपर लूप से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। ये लिखने में उनको जो दिक्कत हुई है, इसका मतलब ये लोग खुद को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
बोल नहीं पाते हैं, एग्जैक्टली उस थिंग को अच्छे से वो कह नहीं पाते हैं। पर क्या ये लोग बुरे हैं? क्या लक इनको फेवर करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि देने की वृत्ति अच्छी है। ऊपर वाला जो है ये बोल भी अच्छा सकता है, ये वाला जो एस है, ये वाला, ये बोल भी अच्छा सकता है और बैठ भी सकता है आपके साथ। लेकिन जो ये वाला है, ये खुद का जो, उसको बहुत तकलीफ हो रही है अगर आप फेल हुए हो तो, आपका जेन्युइन दोस्त है और वो बोल नहीं पाता है उस चीज को। ये सुहानी, सुहानी प्लीज अनम्यूट करो सुहानी को। प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, पहले एक चीज पूछ लेता हूं आप सबको, लेक्चर अगर 20 मिनट ज्यादा चला तो आप लोगों को चलेगा ना? बिकॉज तभी मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा। आज लास्ट डे इसीलिए पूछ रहा हूँ। इफ यू वांट मी टू एंड एट 10 देन आई वोंट एंटरटेन द क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव अ फ्यू डिलीवरेबल्स। अच्छा, उल्टा करते हैं, जो जो लोग यस कह रहे हैं वो लोग रिप्लाई मत करो। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो, जेन्युइनली दिक्कत इन द सेंस यू हैव टू गो समवेयर। तो मैं मेरा डिलीवरेबल पहले दे देता हूं, बाद में एंड में क्वेश्चंस लूंगा। किसी को इश्यू है तो बोलो, जेन्युइनली बोलो, कोई दिक्कत नहीं यार, 9 to 10 का ही टाइम है ओरिजिनली। अगर है तो आपको बोलना चाहिए, नहीं तो आई एम प्रिज्यूमिंग दैट जितने भी पार्टिसिपेंट्स है अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एक्सटेंडिंग इट फॉर हाउ मच एवर टाइम यू गाइस वांट, बिकॉज आई लव टू टीच दिस। ओके, सो चलो बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी एंटरटेन करेंगे, प्रिज्यूमिंग कि जल्दी बंद करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, सो सुहानी, वी आर हैविंग अ क्वेश्चन फ्रॉम सुहानी। Both the curves are equal. Yes, Isha, I'll come to that. Urja Mishra. Yes, good morning. So, sir, actually wasn't there yesterday. I wanted to know अगर ये normal वाला S है, but कोई लोग वो ऐसा cursive वाला भी बनाते हैं ना, मतलब उसका। Yeah, we'll come to that. Right now we are only talking about an electric S and this ये वाला S. Okay. There are a few types remaining. Then after that, probably you can ask me this question. Okay. Sure, sure. Thank you. Yes. So we had who was asking a question? Should I go ahead? Both curves are equal and same and writing in cursive. Yes, we'll come to that. चलो फिलहाल आगे चलते हैं। ओके, ये S है, ये पूरा इलेक्ट्रिक है। क्या इसको हम लोग पार्शियल इलेक्ट्रिक कह सकते हैं? यस। ये वाला इलेक्ट्रिक है फुल्ली। क्या प्रॉब्लम होगा इन लोगों का लॉजिकली? अरे वो आपके साथ भी आके बैठे ना, वो ढंग से रो भी नहीं पाएंगे, उनको दर्द भी इतना होता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप अगर फेल हुए हो, आपके जिंदगी के 6 महीने वेस्ट हो गए हैं इन अ सीए अटेम्प्ट। वो लोग आपको वर्बली भी नहीं सहानुभूति दे पाएंगे। सहानुभूति इज सिंपैथी, तो वो वर्बली भी आप लोगों को सहानुभूति नहीं दे पाएंगे और वो उस चीज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि यार बहुत बुरा हुआ। जनरली वो बोल ही नहीं पाएंगे, बट वो पूरा दिन आपके साथ आके बैठेंगे और इन लोगों को जेन्युइनली बुरा लगता है। नाउ इन दिस केस यूजुअली इन एन इलेक्ट्रिक एस, ये दोनों जो पार्ट्स है ये इक्वली डिवाइडेड। सो नाउ आवर नेक्स्ट थिंग, ये वेयर बोथ आर इक्वली डिवाइडेड, ये भी x है ये भी x है। सिमिलरली विथ इलेक्ट्रिक एस, ये भी y है ये भी y है। क्या होगा इन लोगों का? अरे ये लोग जितना बोलते हैं ना उतना करते हैं। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, मैं आता हूं तुझे मिलने, तो वो आएंगे, पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे। जितना बोल रहे हैं उतना करेंगे। ये वाले का प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ बड़बड़ करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। ये वाले, इनका क्या प्रॉब्लम है?
ये लोग बोलेंगे कम, ये सिर्फ फोन करके आपको पूछेंगे भाई किधर है तू, मैं आ रहा हूं। और ये वाले क्या करेंगे, ये आपको बोलेंगे भी फोन पे भी समझाएंगे, आपके साथ आके भी समझाएंगे। क्या इनकी देने की वृत्ति अच्छी नहीं है? अच्छी है, बट थोड़े से प्रैक्टिकल लोग हैं ये। ऊपर वाला जो देगा, ये वाला, इसका देने का एटीट्यूड ही अलग है और इसका एटीट्यूड अलग है। ओके, एनी क्वेश्चंस? सिंपल, मैंने जो ऊपर आपको दिया है ना, देखो हर लेटर के लिए मैं आपको एक बेसिक ये बोल रहा हूं कि ये चीज ध्यान में रखो। इस बेसिक को दिमाग में रख के आप पूरा हर अलग अलग एस को एनालाइज करने की कोशिश करो। एफ में भी मैंने आपको क्या बोला था, उसी तरह से मैंने डिवाइड करके दिया था, ये प्लानिंग है, ये एग्जीक्यूशन, ये पेशेंस है। बस इस बेसिस पे आप अलग अलग एप्स को जज करो, कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है, क्या मिसिंग है, क्या नहीं। Now we come to the cursive S. Yes, Urja. Are you talking about this S? Or not exactly this one? या सीधा ऐसा करते हैं कुछ लोग, ये भी एक S है। Right? Is this the kind of S you're talking about? Yes. Okay. These people are basically very helpful. See, again, this lower loop is not visible at all. Upper loop is not visible at all. Directly lower loop में जा रहे हैं। ये आए, ये अपर लूप खत्म हो गया, ये लोअर लूप। Yeah, we'll come to that, Abhishek. We'll come to that. So what are these kind of people? These are very very helpful. क्यों? अरे लोअर लूप बहुत बड़ा है भाई। क्या ये लोग सेवा भावी हो सकते हैं? यस। अब जाके किसी अच्छे मंदिर का किसी जेन्युइन ट्रस्टी से बात करना। जैसे आई हैड दिस थिंग कि मैंने ये किस्सा सुना है। वन ऑफ माय ऑफिस में एक बंदा है, वो उसके फैमिली में कोई पैरालाइज्ड है, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट उनको शिरडी ले गए थे वो, बिकॉज उनकी इच्छा थी कि वो शिरडी के दर्शन करे, तो उनको झोली में शिरडी लेके गए थे। एट दैट टाइम वन ऑफ द ट्रस्टीज ही गॉट टू नो कि लाइन में ऐसी एक फैमिली खड़ी है जो एक पैरालाइज्ड इंसान को लेके आई है वहां पे, बस इसलिए कि उनको दर्शन करना था, एंड दे आर वेटिंग इन द लाइन। So that trustee was so overwhelmed and so obliged नहीं, overwhelmed, that he actually came down to meet, और उनको पूरा ग्रीन कॉरिडोर करके उनको लेके गए, उनका दर्शन करवाया, उनकी रहने की व्यवस्था की। दैट ट्रस्टी वाज, उनकी आंख में पानी आ गया था कि भाई आप इतना कैसे कर सकते हो, नहीं करते हैं कोई आज के जमाने में। तो क्या ये जो ट्रस्टी है, बहुत सारे ऐसे भी देवस्थान है जहां पे कोई ट्रस्टी केयर भी नहीं करते, कुछ लेना देना नहीं। तो क्या वो जो ट्रस्टी थे जो इतने हेल्पफुल थे, क्या उनका ऐसा होना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज उस पद के लिए वो सही उम्मीदवार है, जो वहां पे जो भी वो संभाल रहे हैं वो, बिकॉज इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ही केम डाउन, एंड इन अ प्लेस लाइक शिरडी विच हैज lakhs of people coming, right? Yes. नेक्स्ट, ये जो नॉट था, see again, not usually denotes confusion यहाँ पे, although directly confusion का सवाल नहीं है, because this not is coming out of a loop, मतलब विदाउट नॉट ये एस पूरा नहीं हो सकता, ये कर्व है इसीलिए ये नॉट आ रहा है। देखो एफ में तो ये नॉट आप अवॉइड कर सकते हो, अगर एफ के नॉट की बात करें तो ये नॉट अवॉइड हो सकती है, यहाँ पे नॉट करी, यहाँ पे नहीं करी, बट एस के केस में आप नॉट को कैसे अवॉइड करोगे?
वो नॉट तो आएगा, वो इन नॉर्मल फ्लो आ रहा है. तो व्हाट डज दिस एस मीन? इट मीन्स these people usually take responsibility in earnings. कमाने में जिम्मेदारी लेते हैं. और बाकी वर्बल और एग्जीक्यूशन सिंपैथी की बात तो वैसी ही रहेगी. लोअर लूप बड़ा है, लक फेवर करेगा, देने की वृत्ति अच्छी है, ये वाला कम है. हाँ, अगर ऐसा एस है, अगर ये वाला है, I'm not able to make it also properly. आप समझ रहे हो कि लोअर लूप एकदम छोटा है, बहुत रेयर होगा ये एस, ये आपको देखने भी नहीं मिलेगा. ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है. बिकॉज दिस नॉट हैज बिकम सो बिग. एंड द लोअर लूप इज वेरी 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 स्मॉल. yes 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 ROE, all these are lower case, right? ध्यान में रख लो, हम जो भी ग्राफोलॉजी की बात करें यहाँ पे सब लोअर केस वाले एस है, सब लोअर. अच्छा, जो अपर केस वाला एस आता है, अगर आपका पहला एस की शुरुआत ही आप ऐसे करते हो, जैसे कुछ लोग करते हैं, सपोज सौरभ लिखना है तो ऐसा नहीं लिखेंगे, एस कैपिटल ही आता है ना पहला नॉर्मल केस में. तो आप ऐसा अगर लिख रहे हो तो ये वाला एस भी उसी में आ गया. ROE, hope I have made your issue clear. What if there are some combinations of S types? नेहा जी, आप कल के सेशन में थी? मैंने कल के सेशन में वही बोला था that the number of, हाँ, तो कल के सेशन में मैंने वही बताया था कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस डिसाइड कि आप कहां तक पहुंचे हो. S with lower knot also comes sometimes. Lower knot again, that would be related to some lower zone activities technically, but उसमें आप जब एग्जीक्यूशन करते हो, देखो ये जो अर्निंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्लानिंग एलिमेंट करते हो, वर्बल सिंपैथी करते हो ज्यादा ही. बात करने से ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं. कौन? ये वाले. तो अगर नॉट नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूशन करते वक्त पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं. जैसे कि काम का कोटेशन देना है अभिषेक, अगर किसी को रिटर्न भरने का, तो रिटर्न भरने के लिए आपने उसको बोल दिया कि भाई 5,000 रुपए लगेंगे, बट एक्चुअली जब काम होके सब खत्म हुआ तो यू फेल्ट कि मैंने 8,000 लेने चाहिए. This is this is, and there are also some other lower zone activities which we'll discuss later on. ऐसा एस किसी ने देखा है? बोलो ये डॉलर की साइन है, ये लोग निकालते हैं एस ऐसा. स्ट्रॉन्ग अर्ज टू अर्न मनी. ये एस किसका होना चाहिए? टेक्निकली किसी का भी नहीं, बट अगर कोई बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज में से जा रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से जा रहा है, तो उन लोगों को हम ये ग्राफोथेरेपी में बोल सकते हैं कि आपका एस ऐसा निकालो तो उनकी जो भागने की इच्छा है वो चालू हो जाएगी, जो पैसा कमाने की इच्छा शक्ति है वो और बढ़ जाएगी विद दिस डॉलर एस. एट्थ वन में यहाँ पे जो है खुशी, दिस इज strong urge for earnings while planning. This is strong urge for earnings while the execution of sympathy is going on, because this is the execution, और यहाँ पे not execution के वक्त आया. Okay, next, last, ये claw, छोटा सा एक हुक होता है at the end. थोड़ा सा इन लोगों से बच के रहना. These people will take back what they have given. अच्छा, पार्डन माय हैंडराइटिंग, हाँ मेरा हैंडराइटिंग, इसके ऊपर से जज मत करो, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखते वक्त थोड़ा सा, डिजिटल बोर्ड पे लिखते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है.
ओके, फेयर इनफ। चलना है आगे फटाफट, चलो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी एक क्विकली इंटरेस्टिंग चीज ये, अच्छा, इसमें सबसे आइडियल एस कौन सा है मेरे हिसाब से? वैसे तो मैंने कल ही आप लोगों को बोला है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज परसेप्शनल, अनेकांतवाद है, बट फिर भी मुझे पर्सनली लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा। द लोअर लूप शुड बी बिगर देन द अपर वन। बहुत अच्छी देने की वृत्ति है इन लोगों की, लक हमेशा फेवर करेगा। अभी आप लोग एनालाइज करते हो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि नहीं भाई मेरे को तो कुछ लक भी फेवर नहीं करता, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है। पर जैसे मैंने कहा, दो कैटेगरी के लोग हैं, कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको तकलीफें आने ही वाली है, बट उन तकलीफों को आप किस तरह से टैकल करते हो, ये एस बताएगा। सो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, but in a nutshell these guys will have good luck. In all terms, yani, it is, yes, in all terms. What do you mean by all terms? Chalo, let's move on. I am talking about I dotting. मैं I dotting की बात कर रहा हूं। Okay, yes, every situation, yes, TS, in every situation it's the same thing. Luck will favor in every situation. क्योंकि देने की वृत्ति अच्छी है। शुरुआत किससे की थी? जो देगा उसको मिलेगा। आई डॉटिंग में ये गैप बहुत बड़ा है, देखो ये फेकू लोग, ये कुछ भी बोलेंगे आपको। ये क्या बोलेगा ये बंदा, ये आय वाला? अरे भाई, अपना टर्नओवर है 100 करोड़ का, और टर्नओवर होगा कितना? 2 करोड़। अपना बिजनेस बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है, समझ लो। आई डॉटिंग में जितना बड़ा गैप, ये इधर है और ये आय किधर, ये डॉट किधर, तो दुबई लंदन में किया है। फेकोलॉजिस्ट फुल फेंकते हैं जोरदार। ये लोग, ये आय, ध्यान से अपने आय को देखो। कुछ लोग लाइन करते हैं ऐसी। These people usually have the tendencies to talk to God. Why me? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मी असं काय केलंय? So these people have the tendencies to talk to God. जिनका ये ऐसा है। Yes, नीलम। Is it when you say wanting to talk to God, is it complaining or is it I have Either a ways, connection with God? either I ways, have a connection. but most of the times there is a complaint. Okay. To be true, most of the times there is a complaint, but it means that these guys tend to talk to God. You could say that these are spiritual souls also. जो ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं वो लोगों का भी आई डॉटिंग ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई, एम टॉकिंग अबाउट आई डॉटिंग। ओके, प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ डिस्कशन ऑफ आई। नेक्स्ट ये वाला, लोग एरो करते हैं। वो लोग होता है, ऐसा होता है,
ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये चीज, बट आप कभी नोटिस नहीं किया है आप लोगों ने, इसीलिए नोटिस करना उसको. These people are hiding their stress. They are very stressed actually. बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है. नेक्स्ट, उल्टा है, ऐसा एरो है. बहुत ज्यादा एनालिटिकल लोग हैं. And here comes the very common one. गोल निकालते हैं ऐसा. ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा अटेंशन मिलने की इच्छा होती है इन लोगों की. दे विश टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. उनका इच्छा होता है कि अगर 5 लोगों का ग्रुप खड़ा है तो भाई मुझे कोई अलग से ऑब्जर्व करे. ये भी एक टाइप ऑफ आई है, आई डॉटिंग है. सर हार्ट होता है, निकालते हैं लोग. दिस इज एन एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ 5. Yes, Neelam. I have two questions. One is like yesterday, there are some people who start, let's say, it is IT. So that I sometimes has dot, and sometimes in between a letter, it is a normal dotting. So does it have a separate significance that whenever you start a letter, it has a dotting, and whenever you go in between the entire word, that I is normally dotted. So is there a difference between? Not really. Whenever you start separately with words, and if see, this is altogether a different study which we will have to conduct. कि अगर कोई इंसान specifically starting करते वक्त अलग लेटर यूज कर रहा है, अलग डॉटिंग यूज कर रहा है, तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है. दिस इज altogether a different study. As far as my knowledge is, whatever I know, यूजुअली हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऊपर देखा था कि कितनी बार ये चीज रिपीट हो रही है, you just need to stick to that for the time being. Yes, what you are saying makes sense, but we'll have to conduct a separate study for it. अभी कितना रिपीट हुआ है? अगर उन्होंने टोटल 10 आई डॉटिंग किए हैं, डॉटेड आई 10 लिखे हैं, उसमें से 7 ऐसे है जो नॉर्मल डॉट है और 3 ऐसे है जहां पे ये 5 वाला डॉट है. तो समटाइम्स दे आर चाइल्डिश, नॉट ऑलवेज. आई विथ नॉर्मल डॉट एंड डिस्टेंस इज नॉर्मल. मतलब ये जो है, अगर नॉर्मल लाइन है और नॉर्मल डॉट है, बैलेंस्ड है. ये लोग ये फेंकते नहीं है, इनका नेचर चाइल्डिश नहीं है. ये लोग ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, ये लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, या स्ट्रेस को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं. डॉट इज स्लाइटली टुवर्ड्स राइट का. दिस इज she wishes to say that it is this way.
या इट इज दिस वे? स्वाति मैम, इसके लिए आई डॉटिंग का पूरा एक अलग लेक्चर है. आई डॉटिंग इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा दिन जा सकता है. Okay. So that is why I am sticking to only these types of whatever जो easily understandable है उसमें ही मैं stick कर रहा हूँ. This is again a very detailed topic. ये अलग trait है जो आपने बोला point किया वो. This is a different trait. Okay, because और I ये have है. written I and the dot is slightly towards right. Yes. वो अलग अलग patterns है. It is towards right, left. ऊपर में भी थोड़ा अलग है. कहीं कहीं पे नीचे आ जाता है. ये ऐसे भी होता है कुछ लोगों का फटाफट लिखते वक्त. All these have different interpretations. Okay. Thank you. Yeah. Okay, so let's go ahead, guys. Now, इस पार्ट में मुझे आप लोगों को एक पूछना है. अगर चलो ठीक है, वो कॉम्बिनेशन भी बाद में आएंगे. Right now, let us talk about signature analysis. Because I'll complete signature analysis in 15 minutes. Again, see, all this is just giving you an overview. क्या ये हो नहीं गया है. This is just that आपको एक बेसिक समझ में आए, उतना ही है. ये डिटेल डिस्कशंस पूरा दिन चल सकते हैं. अभी से किसी का नाम है अंकित भरत शाह. What is this? This is his full name. This is signature. होता क्या है? See, handwriting is basically your perception about the world which you have taken, which comes down into on your paper. But what is signature? Signature is basically, it is a depiction of yourself. आप जो खुद के बारे में सोचते हो उसको वो डिपिक्ट करता है. हैंडराइटिंग आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो बाहर की चीजें समझ के, ये डिपिक्ट करता है. सिग्नेचर आप खुद को किस तरह से रखते हो ये डिपिक्ट करता है. इट इज योर परसेप्शन विच यू हैव मेड अबाउट योरसेल्फ. ये इसको अगर 3-4 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड होता है. ये दिस इज योरसेल्फ, this is your father, or rather to improvise it I would say father figure. This is the mother figure, and this second part of your surname apart from the first letter is your career. So now with regards to this, if I say my first signature is A V शाह. क्या किया इसमें मैंने खुद को कॉम्प्रोमाइज किया. खुद का जो एडजस्टमेंट के लिए मैंने एक रिसेप्टिव हुआ मैं, क्योंकि खुद का पूरा नाम नहीं लिखा मैंने. सेकेंडली बी, भरत का बी लिखा, मतलब मेरे फादर के थॉट्स को मैंने प्लेस दिया, लेकिन इतनी भी जगह नहीं दी कि वो मुझे डोमिनेट करे. सेकेंडली शाह लिखते वक्त मैंने मेरे मदर के थॉट्स को इंपॉर्टेंस दिया. इसमें अगर किसी की शादी हो चुकी है तो उनके लिए उनकी मदर फिगर घर में उनकी सासू मां होगी, या whoever is whoever is the motherly figure in their life. और SHAH मैंने क्लियरली लिखा. तो क्या किया मैंने मेरे करियर को भी क्लियरली मेरे सिग्नेचर में लाया. तो योरसेल्फ, मदर, फादर एंड योर करियर, 4 थिंग्स. अभी अगर इस सिग्नेचर में सपोज ये सिग्नेचर लिखी, फादर का इन्फ्लुएंस नहीं है या फादर के थॉट्स को इंपॉर्टेंस नहीं है,
क्यों? फादर का नाम ही निकाल दिया ना सिग्नेचर में से। अच्छा, अगर इसका कॉम्बिनेशन करना है, अगर आप सामने वाले को देख रहे हो एंड यू कम टू नो दैट दो चीजें है कि भाई उसके पेपर में देयर इज अ वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन और उसकी सिग्नेचर में वो सिर्फ अंकित शाह लिखता है, छाती ठोक के उसको बोल दो कि यू हैव गॉट कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर फादर। I hope you guys remember what a widening left margin means. There are going to be many questions about signature. As I said, signature analysis सीखने के लिए मुझे तो लगभग 4-5 दिन लगे थे, तो मैं 15 मिनट में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकता हूँ, because there are so many combinations with signature analysis, especially with signature analysis. लूप आता है, किसी का लूप नहीं आता है, कोई सिर्फ नाम लिखता है। मैं आपको ये चीज इसीलिए बताता हूँ so that you can analyze it for yourself. और जो डिटेल्ड कोर्स हम लोग करेंगे उस कोर्स में तो ये सारी चीजें 1 by 1 डिस्कस होने ही वाली। अभी सिर्फ इसमें मैं आप लोगों को वही चीजें बता रहा हूं जो आपको खुद को एज एन इंडिविजुअल डेवलप होने के लिए हेल्प कर सकती है। दूसरी बात, आइडियल सिग्नेचर कौन सा? अच्छा, ये जो स्कोर होता है, ये जो डॉट है, दिस लाइन, सॉरी, दिस लाइन एंड दिस इज द स्कोर। अगर मैं ये लिख रहा हूं अंकित शाह, ये लाइन है और ये दो स्कोर्स है। स्कोर्स बेसिकली डिपिक्ट conviction and confidence. This depicts conviction and confidence. अगर कोई ये कर रहा है तो he is very very confident. और ये डॉट्स जो है वो पर्टिकुलरिटी है। मतलब क्या? ये जो दो डॉट्स करने वाला बंदा है, इसको अगर आपने बोला ना कि कल शाम 6:30 बजे मुझे आपका पैन, आधार और आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपका रिटर्न फाइल करना है तो वो 6:25 को आपके ऑफिस के दरवाजे पे आएगा। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है कि वो नहीं आ सकता है तो वो आपको 6 बजे ही फोन करके बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता। पर्टिकुलरिटी। अच्छा सर, अगर ये डॉट नहीं है तो पर्टिकुलर नहीं है। अगर 3 डॉट्स है तो ओवर पर्टिकुलरिटी, ओवर डिसिप्लिन। ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं 3 डॉट्स है तो। ये लोग जिंदगी कैसे जीना, ये फिलोसफी में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। So this over particularity is not something अति तिथे माती कालपासून खूप वेळा झाले ते. Yes, Neha, you had something to ask? Yeah, so I was actually asking if there are 2 dots, 2 lines, and also have a habit to put the date below the lines. So does that Do you specify put something? that date every time? Yes. So it means which profession are you in? Architecture. Okay, so very 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 particular and you are very conscious about dates. आपकी जब भी बात होती है किसी के साथ, अगर कोई बोलता है की अहो ती डिझाईन तेव्हा केली होती, तुम्ही म्हणणार नाही, डेट बघा आधी कधी तुम्हाला पाठवला होता मागचा ड्राफ्ट. So you are very very particular about dates, you are particular about the date on which you are signing, and you wish to stress that out. Okay. While signing. And about the 2 lines, if you are putting up 2 lines, so that means you are very confident about what you have made. Okay. आपने अगर जो डिजाइन करी है उस डिजाइन के ऊपर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एक लाइन कम कर दो। कभी कभी इन सम केसेस दिस टर्न्स इनटू ओवर कॉन्फिडेंस. Okay. Okay. Which somewhere hampers your growth. Yeah. Okay. Okay. Last one thing in signature analysis. अच्छा, ये हो गया क्या सिग्नेचर एनालिसिस? नहीं, जैसा मैंने कहा ये समुंदर है,
मैं आपको सिर्फ एक बाल्टी दे रहा हूं उसमें से, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बट अभी के लिए आई वुड ओनली टेल यू व्हाट एन आइडियल सिग्नेचर इज। ए बी शाह, एक लाइन, 2 डॉट्स। यहां पे डॉट्स निकालने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट क्रिएट बैरियर्स। आपको खुद को इंपॉर्टेंस दिया, फादर के थॉट्स को इंपॉर्टेंस दिया, मदर को दिया, खुद के करियर को दिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक, योर सिग्नेचर शुड बी लेजिबल। अलग ही फिलोसॉफी है दुनिया में कि जितनी सिग्नेचर कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना अच्छा। वेंकट को कॉपी नहीं करना। अरे राजन, नो, सचिन तेंदुलकर सिग्नेचर इज इजीली रीडेबल। टेक आउट एनी ग्रेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ज्यादातर लोगों की सिग्नेचर लेजिबल है। मुझे एक बात बताओ, आई गिव यू अ प्रूफ फॉर दैट। अगर लाइव क्लास होता तो मैं आपको एक्चुअली करने लगा था वो। ये एक सिग्नेचर है, ठीक है, और ये एक सिग्नेचर है। अरे जब ओरिजिनल सिग्नेचर ही रीडेबल नहीं है तो इसको कॉपी करने में कौन सा, या इसको इमिटेट करने में कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? कोई भी कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नेचर ही रीडेबल नहीं है। वेराज यहाँ पे अगर आपने उसको फोर्ज करने की, कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करी तो प्रोबेबली ही वुड राइट इट ए बी शाह मे बी। यहां समझ जाओ, उसने इलेक्ट्रिक एस निकाला है, आपका एस नॉर्मल है। अरे ये सब आप डिफरेंशिएट कब कर सके? जब ओरिजिनल सिग्नेचर रीडेबल है। फोर्जरी इज मोर इजी टू यू नो टू बी कॉट व्हेन योर ओरिजिनल सिग्नेचर इज रीडेबल। सो दिस इज अ वेरी फॉल्स कॉन्सेप्ट कि जितना कॉम्प्लिकेशन होगा उतना भारी। कुछ भी नहीं, गलत है वो बात, निकाल दो दिमाग में से अगर बैठा है तो। सिग्नेचर रीडेबल नसण्याचा सोपा अर्थ असा आहे, when signature is not readable, it means that you are not clear about what you wish to do. You are not clear about yourself. Because what is a signature? It is about you. आप खुद को सिग्नेचर में डाल रहे हो। There are thousands of questions. What if rotten at the end of sign? I didn't understand. Please type again. What if you write only your first name? Yes, Vaibhavi, you tell me. When you write your first name only in your signature, which many of them do, and I mean, no, please don't raise some feminist case against me, but मैंने ये चीज ज्यादातर के लड़कियों में देखी है जो सिर्फ खुद का नाम लिखते हैं, एंड स्पेशली बिफोर मैरिज। कोई फेमिनिस्ट चिड़ो मत कि क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। अरे भैया, देखा, ये ट्रेट है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप खुद का नाम लिख रहे हो तो सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हो? क्या आप आपके फादर फिगर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? नहीं। मदर फिगर को? नहीं। करियर को? नहीं। आर यू रिस्ट्रिक्टिंग योर ओन सेल्फ टू समथिंग? यस। साध्या भाषेत, I don't want to use that word, but could you call these people selfish? Yes. Selfish का मतलब वो लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, बट वो प्रायोरिटी उनकी ये है कि वो खुद के बारे में सोचते हैं। अगर पापा कह रहे हैं घर में कि भाई 20,000 रुपए की घड़ी हमें नहीं लेनी है, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, बट ये क्या सोचे कि मुझे लेना है। आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट टू डू, आई एम टेलिंग यू आई वांट टू टेक इट। राइट और रॉन्ग की बात है? बिल्कुल नहीं, इट्स ओके। ये किस सिचुएशन में ऐसी सिग्नेचर ज्यादा प्रेफरेबल है? व्हेन समवन हैज लॉस्ट हिज और हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत जरूरी है उस टाइम पे उसका खुद का एक रिस्पेक्ट खुद के लिए जगाना। तब यू शुड एडवाइज एज अ ग्राफोलॉजिस्ट दैट प्लीज यूज ओनली योर ओन नेम, और धीरे धीरे वो खुद का इंपॉर्टेंस समझने लगेंगे।
हाँ वो ये स्नेहा वो चीजें ठीक है, इनिशियल्स यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, दैट इज ओके, दैट डजंट मैटर. Don't consider that as your signature because that is something which you're doing because फटाफट खत्म करना है वो चीज को. That is not your own that is not the true depiction. What if the dot is in the end of the signature? It means probably you wish to put a full stop, Yogita ji. Whenever that is what you mean by a dot. Okay, so I'm burdened with more questions. Yes. First name readable, surname not readable. It means that you're not clear about what you're doing in your career. You're not happy with what you are doing in your career. He means to say this. A, B. ये readable नहीं है. So you're not clear about your career. Yeah, you're not happy with your career. आप वो करना नहीं चाहते हो. Loop is completely a different study altogether, Monica ji. She's talking about this. Or you know there are many patterns here actually. A, B, शाह. कुछ लोग ये भी करते हैं. शाह में फिर ऐसा करके ये करेंगे. There are many patterns. ये इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ because ये अगर मैं चालू करूंगा तो लेक्चर का बेसिक्स ही चलेगा 12:30 तक. Now an important thing. Yes, Neelam, go ahead. You said that the underscore, the scoring depicts conviction and confidence. Does it mean that if for the complete signature bar kiya to, ya for one letter bar kiya to? Like there must be a difference, right? There must be a difference. Again, the what do you say? The intensity of confidence will reduce. अगर आप छोटा कर रहे हो उसको तो कॉन्फिडेंस है पर कंपैरेटिवली कम है. अगर पूरा सिग्नेचर अंडरलाइन हो रहा है तो वो ज्यादा है. Got it. Thank you. Yes, Swati ji. Actually, what happens when we are at the age of 15 and 17, usually parents say कि sign में, especially for girls, कि sign में सिर्फ अपना ही नाम लिखो क्योंकि शादी के बाद आपका surname change हो जाता है, husband का name change, you know, you have to add your husband's name. तो स्टार्टिंग से ही हमने ऐसे किया है कि अपने ही नाम से हैंडराइट मतलब सिग्नेचर किया है. So could it be related to selfish or lost respect or what else you are talking about? Yes. देखिए ये इंटेंशन आपका जो भी हो अल्टीमेटली अभी जब भी हर इंसान की लाइफ में ये दिन आता है जब उसको साइन करना पड़ता है, राइट? हर एक की लाइफ में ये दिन आता है जब पहली बार उनको साइन करना पड़ता है. तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो अभी ये अंकित जी है, अगर इसने सिर्फ अंकित लिखा, और कुछ लोग होते हैं एकाध कोई इंसान ऐसा रहेगा जो ए बी शाह लिखेगा या कोई ऐसा रहेगा जो अंकित शाह लिखेगा. नहीं, what I was asking about कि before yes, marriage yes, I got your point. Swati Shah, now right now I am Swati Merchant, right? Correct. So yeah, there is vast difference. If at the starting only I would have written Swati Shah, and how can I change my signature after marriage? So abhi even I teach my daughter, you only write your name, don't go with your surname. No. So is it right? What to do for that? It is definitely not right because you are telling her to think only about herself. See, सिग्नेचर का ये क्या फर्क पड़ता है ना सिग्नेचर चेंज करने में. शादी के बाद जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट आता है, और आजकल तो वो लॉ पास हो गया है, यू नीड नॉट चेंज योर नेम आफ्टर योर मैरिज. पासपोर्ट पे पूरा नाम चलता है प्री मैरिज वाला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So I don't think so these technical things are they matter so much because ultimately the psychology is important over here, not the problem of changing name once in a lifetime. Okay. जो आजकल लीगली भी जरूरी नहीं है. तो प्लीज डोंट पुश योर किड्स इन थिंकिंग ओनली अबाउट देमसेल्व्स. प्लीज मेक देम थोड़ा सा एडजस्टिंग. मैं आपको उनका नाम मिटाने के लिए नहीं कह रहा हूं. उनको अच्छा इनके मैं भी कभी मैं प्रीत पूरा लिखता हूं, मेरी खुद की बात करता हूं, which I'm trying to improve. वो भी एक तरह से कहीं तो सही नहीं है.
बट मैरिज के बाद मैं आपको उल्टा कहूंगा कि आपकी लड़की ने तो उल्टा शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत. ये फैक्ट है. अगेन फेमिनिस्ट, आई एम वेरी सॉरी, बट ये Yeah, फैक्ट yeah. है कि नहीं है? है, डेफिनेटली है. लड़की को 2 पैसा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है लड़के से. तो अगर आप उससे ये चीज कम करवा रहे हो, और अगर हस्बैंड भी थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तर भांड्याला भांडं लागल्यावर आवाज होणार हो. Oh, yeah. So think about the psychology and not about the formalities which you need to complete when you change your name or your signature. Okay, okay, fine. Yeah, thank you. Yeah, welcome. Yes, Khushi, there are many patterns in all this. We'll discuss all those patterns in detail. Okay. Now I'll come to straight away my point, which I want to discuss because I haven't started with the samples. Shit, it's already 10. I handwriting samples live analyze करने हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ready रखे हैं. अडोल्फ हिटलर की सिग्नेचर कैसी थी पता है आप लोगों को? वो ऐसे कुछ तो करता था. Tendencies of losing. Graphologists already knew कि ये drooping है. जे मिळवेल ते घालवेल. These were his tendencies from the beginning. Sir, मैं तो ऐसे करता हूं, ऐसे normal. These people are usually ambitious. ये मैं slant की बात कर रहा हूं. Slant of signature. These people are ambitious, having upper back problems as far as medical astrology is concerned, medical graphology is concerned. अचीव किया है ऑलरेडी, बट फिर भी और अचीव करना है. अगेन इश्यूज विद फादर फिगर. क्योंकि घूम फिर के ये फादर फिगर के साथ इश्यूज तो बार बार आ रहे हैं. है यार, अभी वो ट्रेड्स में है, मैं क्या करूं. स्टडी में आया है आज तक वैसे. अच्छा, किसी की सिग्नेचर अगर सीधी है, स्ट्रेट है, ऐसा लिखते हैं ए बी शाह. स्लांट, स्लांट सीधा है, 1 to 10 डिग्रीज है. अच्छा, नापो मत 1 to 10 डिग्रीज. अगेन विच इज प्लेजेंट टू द नेकेड आई. इसका मतलब क्या होता है? These guys are very satisfied with their life. They live like flowers. यूजुअली हाउसवाइफ्स की सिग्नेचर ऐसे होती है बिकॉज उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, मेरे बच्चे का 2 टाइम का खाना अच्छे से होना चाहिए, उसका पेट भरे, उसको अच्छा एजुकेशन मिले, बस. पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सिर्फ घर वालों से एक्सपेक्टेड होता है और किसी से नहीं. They are very satisfied in life, and that is why we had that beautiful generation of mothers which had these kind of signatures, and that is why they could nurture us very well whatever we are today. ये सिग्नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें. ये स्लांट जो सीधा. Does that mean कि अगर ये ऐसा नहीं है तो you won't be a good mother? Not at all. I don't mean to say that. But yes, somewhere she has to feel happiness in my happiness, which is more probable with this kind of a slant. I don't mean to say सारी mothers की signature ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Next.
इन लोगों का यूजुअली फादर फिगर के साथ इश्यू नहीं होगा। कितने लोगों ने थप्पड़ मूवी देखी है? आई होप सबने देखी होगी। तो दिस इज द तापसी पन्नू, दैट तापसी पन्नू इन थप्पड़। उनका जो कैरेक्टर है, तापसी का जो कैरेक्टर एक्चुअली दिखाया है, दैट कैरेक्टर इज दिस थर्ड सिग्नेचर। These people will not have any issues with father. Okay, noted. Chalo, let's go ahead, guys. We are running too much out of time. I'll just show you. So अब तक हमने क्या क्या देखा है? B देखा है, S देखा है, सिग्नेचर एनालिसिस में पार्ट्स करके मैंने दिखाया है, उस पूरा समुंदर है, जितना एक्सपेक्टेड है उतना मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। आइडियल सिग्नेचर मेरे हिसाब से ये वाली है, जो ऊपर जा रही है, जिसके नीचे एक स्कोर है, 2 डॉट्स है और बीच में और कोई बैरियर्स नहीं है। ओके सबको दिख रहा है ये सिग्नेचर, या ये पेज दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द पेज प्रॉपरली? क्या दिख रहा है दोस्तों इसमें? विथ बॉर्डर्स, बॉर्डर्स छोड़े ही नहीं है, लेफ्ट मार्जिन बहुत ही नैरो है। देखो पेज यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू हो रहा है, लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे है, इसीलिए मैंने जो फोटो निकाला उसमें मार्जिन्स मैंने थोड़ी से ये करे हैं। Very much stuck in the past, thinks a lot about past. राइट मार्जिन में क्या है? राइट मार्जिन भी बहुत चिपक रही है, तो वेरी एम्बिशियस, और यू कुड से अपॉर्चुनिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक। देखो उसने कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी है, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस के बाद ये प्रोसेस वाला वो जो वर्ड है इसको नीचे ले सकते थे यहाँ पे, but she tried to use this whole space which is available. So opportunities कभी छोड़ते नहीं है, but this is not good. कम्युनिकेशन में उसने ION नीचे किया, बैठ नहीं रहा था इसीलिए। She is a very bad driver. 2 गाड़ियों के बीच में अगर पार्किंग करना है ना, तो उसको अंदाजा नहीं आता है कि मेरी गाड़ी इधर बैठेगी कि नहीं बैठेगी, ये गाड़ी हिलाओ या ये गाड़ी हिलाओ। ये ऐसे वाले लोग हैं, दे आर बैड ड्राइवर्स, और अल्टीमेटली गाड़ी लगाने जाते हैं, अटक जाते हैं, फिर कोई पीछे से आता है कि मैडम हेल्प करूंगा, तभी ये यूजुअली इन लोगों के साथ ये ज्यादा होता है। बट yes, futuristic. So this is about margins. Baselines, do you see properly? If you observe properly, ये थोड़े से ड्रूपिंग है, कॉन्केव है, सारा ऐसा है बेसलाइन, देख रहे हो? देखो ये ऐसा शुरू होके ऐसा जाता है। व्हाट इज बेसलाइन? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। तो क्या करोगे इसके बारे में? कॉन्केव है मतलब बेसलाइंस के बारे में क्या कहोगे आप? भाई बेसलाइन कहीं तो पॉजिटिव होती है, फिर वापस नेगेटिव होती है, अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। बट देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द होल डे। यूजुअली अभी अच्छा कौन सा लेटर हमने सीखा था? डॉटिंग की बात करें, आई डॉटिंग, ये आई थोड़ा स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया डॉट।
ये वाला भी नॉर्मल है, सीकिंग अटेंशन वाला डॉट आ गया ये अगेन नॉर्मल है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। बट आप देख रहे हो तो राउंड आता है कभी कभी, तो समटाइम्स शी विशेस टू सीक अटेंशन। यहाँ पे डॉट ही नहीं आया, नहीं है, सॉरी, दिस इज द बिगिनिंग, डॉट आया है, ये देखो ये। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डॉटिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। नॉर्मल है मतलब क्या है, अननेसेसरीली फेंकती नहीं है, ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, और ज्यादा अटेंशन सीकिंग नहीं है। व्हाट एल्स आप लोगों ने एफ सीखा था, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एलिमेंट है ही नहीं। देखो मतलब जिंदगी जैसे आ रही है वैसे जी रही है। कहाँ है एफ 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 एफ, बट पेशेंस है। ओके समझ रहा है कैसे एनालाइज करना है हैंडराइटिंग। चलो और एक सैंपल देखते हैं। दिख रहा है, थोड़ा सा ड्रूपिंग है, बेसलाइंस नीचे जा रहे हैं। ये मेरा एक दोस्त है एंड ही वाज नॉट क्लियरिंग हिज सीए एग्जाम एट दैट टाइम। तो यस ही वाज इन सम डिप्रेशन, डिप्रेशन कहने से अच्छा थोड़ा पेसिमिस्टिक हो गया था, यार नहीं हो रहा हो यार क्लियर, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखो पूरे पूरे बेसलाइंस नीचे जा रहे हैं। क्या इस इंसान को थोड़े हेल्प की जरूरत है? डेफिनेटली। साइकोलॉजिकली कोई इसके साथ चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। मार्जिन, ध्यान से लेफ्ट मार्जिन को देखो, बहुत ध्यान से, वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन है या नहीं? मार्जिन वाइडनिंग, वापस दिखा रहा हूं, लेफ्ट मार्जिन वाइडन हो रही है। इश्यूज विद द फादर फिगर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ता है। क्यों? देखो ये आई जब लिखा तो ए एम एम जो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे बैठ सकता था ऊपर की लाइन में, उसने छोड़ दिया। तो वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज समटाइम्स, नॉट दैट फ्यूचर ओरिएंटेड जो पिछले हैंडराइटिंग में था। देखो यहाँ पे भी माय ओन बिजनेस, ये यहाँ पे बैठ सकता था। एफ एफ ये देखो ये वाला, ओनली एग्जीक्यूशन, नो प्लानिंग एट ऑल, पेशेंस बाहर ही नहीं है। तो ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट बिकॉज पहला प्रॉब्लम ये है कि सारे बेसलाइंस ड्रूपिंग है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंस नहीं है, और सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। तो क्या इसके दिल के अंदर एक वोल्केनो तैयार हो रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत चीजें हो रही है। आप समझ रहे हो एक हैंडराइटिंग उसके बारे में कितना कुछ बता रहा है हम लोगों को। देखो सारे एफ देखो, देखो ये वाला एफ,
सारे के सारे एफ में पेशेंस बार नहीं है और सब तरफ नॉर्मली सिर्फ लोअर लूप बड़ा है, सिर्फ लोअर बलून है, प्लानिंग एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। Guys, please put on your cameras so that I can see you. Football, F. Okay, what else? क्या सीखा था हमने? और R. चलो R तो खैर ठीक है, वो क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो रिलेटेड है, इतना कुछ ऐसा। S इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा मनी माइंडेड। ये लूप आ रहा है बिकॉज ही वांट्स टू गो अहेड विथ राइटिंग दैट E, दैट इज व्हाई देयर इज अ लूप एट द एंड। सो नेचुरली S का लूप नहीं है। ऊपर वाला लूप क्यों आया? क्योंकि वो S के ही अंदर लूप आ रहा था। S लिखते वक्त ही वो उसने लूप बना दिया। यहाँ पे नीचे वाला लूप इसीलिए आया बिकॉज S से वो E पे जाना चाहता था। यस नेहा? Yeah, so we talked about the patience bar in the letter F. So it is the same concept that is applied with the letter T as well. लेटर नो। Okay. T का एनल, T बहुत ही डिटेल्ड है आगे। Okay. T में उसका बार आप कहाँ प्लेस करते हो, अपर जोन में, मिडिल जोन में, वो T और H का कंपैरिजन होता है, कितना H से T बड़ा है, क्योंकि T H इज यूजुअली रिटन टुगेदर। Yeah. तो T का पूरा पढ़ाई ही अलग है। डोंट मिक्स इट अप विद F। Okay. Thank you. देखो S कहीं लोअर लूप ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है अपर लूप से, तो देने की वृत्ति इतनी खास नहीं है। Preet, if you can see that the distance between two letters, two words, is a lot Spacing. more than what is. Very good. So that indicates detachment to. ये बात प्राइमरीली दिख रही है एकदम, बट मैंने इसीलिए रेज नहीं किया बिकॉज वी हैवंट गॉन इनटू दैट इशू। बट दिस गाय थिंक्स अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिंग्स। देयर इज वर्ड स्पेसिंग, देयर इज लेटर स्पेसिंग, दो लेटर्स के बीच में कितना गैप है, एंड देयर इज आल्सो लाइन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच में कितना गैप है। Okay. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच इज टू बी सीन। और इसके केस में जो वर्ड्स अभी बात निकली है तो बता देता हूं, वर्ड स्पेसिंग इज मेनली फॉर द पर्सन थिंकिंग अबाउट अदर्स। ये इंसान, जब तुम्हारे दो लेटर्स, दो वर्ड्स में इतना डिफरेंस है, तो ये मेरे बारे में, अभी सपोज मैं इसके साथ बैठा हूं, मैंने मेरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम इसके साथ शेयर करी, तो जैसे मैं निकल जाऊंगा ये इस प्रॉब्लम को भूल जाएगा, वो उसको पकड़ के नहीं बैठेगा। ही इज मोर ऑफ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो सेल्फिश वाला हिमसेल्फ नहीं है, बट वो चीज को वहां पे फुल स्टॉप लगा देता है। ओके, बट अगेन द मेन कंसर्न इज द बेसलाइन ओवर। अच्छा, उसको रात को यूजुअली थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि रात में जो है उसकी बेसलाइन इतनी ड्रूपिंग नहीं है। देखो, व्हाइल ही इज स्लीपिंग ही इज नॉर्मल। तो आप अगर सामने वाले को कहते हो कि भाई तुझे नींद अच्छी आती है और सोते वक्त तू पेसिमिज्म छोड़ देता है तेरा, तो देयर इज गोइंग टू बी अ वाव फैक्टर। अरे हाँ यार, बराबर है यार, देखो कैसे पता चला। Yes? Yes, it is advisable to complete the loop in J and Y, G and Y. So this is it about the signature analysis part.
I have a few announcements to make. Yes, now do you have any more questions? See, मेरा कहना है कि और patterns के बारे में questions मत पूछिए, because that discussion will keep going on, it won't end. So this was my demo of how I wish to conduct this lecture and how what importance graphology has. Believe me guys, ये इतना बढ़िया science है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है. और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि this is not predictive. It is simply observatory. ऑब्झर्वेशन से आगे जाना है इसमें. कधी लग्न होईल, कुठल्या वेळेला होईल, असले प्रश्न नाहीये तिकडे. Circle, does FF include husband as well? FF, yes, Gautami, valid question, and it does. She means to say father figure includes husband as well. Yes, शादी के बाद आपके लिए आपका फादरली फिगर जो सिग्नेचर में जो सेकंड ये है इनिशियल, वो फादर की जगह आपके हस्बैंड का आता है. तो यस, दैट इज अ रिप्लेसमेंट आफ्टर मैरिज. इसको आपने इंपॉर्टेंस देना चाहिए. नवऱ्यांना थोडं महत्व द्या. Okay, so I've tried to answer almost all your questions. अगर कहीं किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो I'm sorry, there are ultimately limitations. So we are planning to start a batch in April end, and there is going to be all the lectures will be on Zoom for the time being. Or basics, the course is basically divided into 3 parts: basics, improvers and finalists. आपको इसका डिटेल्ड ब्रोशर मिलेगा ही, डोंट वरी, ऑल ऑफ यू विल गेट दिस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. द फीस फॉर दिस इज 7,500. यहाँ पे इट इज 9,500 और यहाँ पे इट इज 10,000. This will go on for almost the classes will be usually on Saturday and Sunday. और अगर बैच परमिट करता है और अगर ये पूरा लॉकडाउन ही लग गया, आई डोंट नो व्हाट अनाउंसमेंट्स दे माइट मेक टुडे, तो इफ ऑल आर कन्वीनियंट तो हम लोग लॉकडाउन में हर रोज भी बैचेस ले सकते हैं, मतलब एवरी डे बैक टू बैक, बिकॉज लोग घर पे ही रहेंगे. तो अगर कहाँ इफ पीपल आर विलिंग टू ज्वाइन, सैटरडे संडे यूजुअली ये रहेगा. एंड दिस विल गो ऑन फॉर 2 weeks, this will go on for 3 weeks, this will go on for 3 weeks. 3 into 2 मतलब एवरी वीकेंड पे 2 दिन है, 2.5 से 3 घंटे हर रोज. ओके. एंड सेकेंडली एनालिसिस डेज इसमें अलग हो गए. this will have 1 analysis day, this will have 2 analysis days, this will have 2 analysis days. These will be teaching days, these will be analysis days, because जब तक आप लोग ये सारी चीजें एनालाइज करके एक्चुअल सैंपल्स नहीं देखते हो, जैसे अभी ओवर वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन अभी देखा तो आपको समझ में आया कि अच्छा वाइडनिंग मार्जिन ऐसे होता है. जब तक आप एक्चुअल एग्जांपल्स को देखते नहीं हो तब तक आपको एग्जैक्टली उस पर पकड़ नहीं आएगी. एंड आई यूजुअली हैव दिस हैबिट ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स बिफोर आई गो अहेड. So this is what the class is going to be. But right now, since this is a beginning of, मतलब एक नया बैच है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि 6,500, 8,500 और 9,000, these will be the fees up to I guess next weekend तक, which will be fluctuating again. वो आपको जो ब्रोशर आएगा उसमें आपको समझ जाएगा. ठीक है, ये कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें इस ब्रोशर में आपको समझ जाएगी. और आपको जो मेल आईडी दिया है उसके ऊपर भी आप लोगों को आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. यस, दिस विल बी अ सर्टिफाइड कोर्स. आपको न्यूरोमॉन्क का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा दैट यू हैव कंप्लीटेड. हर लेवल के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, बेसिक्स के लिए भी, इम्प्रूवर्स के लिए भी, फाइनलिस्ट्स के लिए भी. एंड देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज दिस, जैसे एस्ट्रोसेज है वैसा ही एक MBS करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है.
तो आप लोग यहाँ पे भी एज अ ग्राफोलॉजिस्ट रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर शोइंग दिस सर्टिफिकेट, बट अगेन देयर विल बी आपको एक मिनिमम एनालिसिस करने पड़ेंगे, 30-40 सैंपल्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे एज अ ग्राफोलॉजिस्ट रजिस्टर कर सकते हो और लोगों को कंसल्टेशंस दे सकते हो. दैट इज अ वेरी लेटर ऑन का थिंग, बट ये पॉसिबिलिटी है with this, because right now there is no platform where actual graphologists can go and register. जैसा एस्ट्रो स्टेज पे एस्ट्रोलॉजर्स कर सकते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म आ रहा है इन फ्यूचर. ओके, ओवरऑल आई नीड 40 to 42 आवर्स. अच्छा, इसमें कौन से, इसमें क्या कवर होगा ये भी उस ब्रोशर में आएगा, बट इन अ नटशेल आई टेल यू व्हाट ऑल आई कवर. पूरा हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, कलर्स कौन से यूजुअली हमने यूज करने चाहिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन. उसके बाद पिक्चर्स का डिपिक्शन, बच्चों के साथ स्पेशली ये कर सकते हो आप लोग कि बच्चों को अगर कुछ निकालने बोलते हो, कुछ ड्राइंग, तो वो लोग पहले क्या निकालते हैं. अगर उनको सन निकालने बोलते हो तो वो सन उन माउंटेन्स के पीछे निकालते हैं या पूरा निकालते हैं. इससे भी उनकी साइकोलॉजी का स्टडी हो सकता है. That also I'll be covering because I know I just wish to pass it on. और मुझे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बेसिक्स आता है. अगेन वो नॉलेज भी मैं पास ऑन करने को रेडी हूँ because that is normally also available. But if time permits, I'll pass that on as well. So this is going to be covered over here. No, Gautami. Her question was that will improvers and finalists cover everything from basics? आपको तीनों कोर्स करने ही पड़ेंगे. बेसिक्स का सिलेबस अलग है, इंप्रूवर्स का अलग है, फाइनलिस्ट का अलग है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट डिटेल में आता है. और देखो अल्टीमेटली आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे, लिखने के बाद जितना एनालिसिस करोगे उतनी वो चीजें आपके दिमाग में बैठते जाएगी. एक दिन में नहीं आने वाला है. और ये पूरा कोर्स होने के, ये एनालिसिस डेज होने के बाद आपको सिर्फ समझेगा कि अच्छा ऐसे होता है एनालिसिस. उसके बाद जितना एनालिसिस करोगे, मुझे खुद को 6 महीने लगे थे सारी चीजें दिमाग में बैठने के लिए, when I was continuously doing that analysis. So this is it. Yes. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ईशा आपको सीधा सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है ना फॉर दिस वर्कशॉप. नहीं, इस वर्कशॉप के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं. दिस इज अ फ्री डेमो लेक्चर. And this is not even the cover page which we have talked about in these 2 days. ये कवर पेज भी नहीं है. बहुत ही बेसिक चीजें है जो हमने अभी पढ़ी है. वो which batch should we take, basic और improvers? Definitely basic. अभिषेक, बेसिक में बहुत सारी चीजें हैं. मार्जिन में अभी तक हमने बहुत कम बात करी है. अभी तक 2-2.5 घंटे बात करी यार हमने, वो कुछ भी नहीं है. Dot at the end of the signature is right or no? योगिता जी, yes, you could say it is right. कोई प्रॉब्लम नहीं है. You're making a full stop, you're making an end to that. नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, उससे कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं. No, you won't get any participation certificate for this workshop, भक्ति जी. बैच कभी शुरू होता है? बैच mostly would start by April end. We are yet to decide the dates, but probably from next Saturday. And if the lockdown अभी अगर लग जाता है और अगर सब जिन्होंने एनरोल किया है उनको पॉसिबल है तो हर रोज ही लेंगे फिर. Yes, thank you very much, Neelam. It's an amazing session. Yes. See, I have basically tried to pass on everything जो मैं कर सकता हूँ. How many batches in a year? Shukra, I cannot commit that how many batches in a year because this is not my full-time profession. But yes, batches होते रहेंगे और I cannot commit अगली batch कब होगी.